السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ملک شاہ زیب۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیتی وضیع للناس، کہ اس دنیا پر انسانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے پہلا گھر بنایا للذی ببکہ، یعنی کہ وہ یقیناً مکہ میں ہے، مبارکہ، وہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کیسے حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا ہوگا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیسے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا ہوگا، کیسے کیسے جو ہے وہ لوگ آئے ہوں گے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کیسا ہوا کرتا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی خانہ کعبہ کی ہسٹری ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا، لیکن اس وقت یہاں پر حجر اسود کا پتھر بھی نہیں تھا، زمزم کا کنواں بھی نہیں تھا، مقام ابراہیم بھی نہیں تھا، صفا مروہ کے پہاڑ تو تھے لیکن ان کی اہمیت نہیں تھی۔ یہ بالکل 4 سمپل دیواریں جوڑ کر اللہ کا گھر بنایا گیا تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کعبہ بنانے کے کافی عرصے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو یہ سیلاب اتنا زیادہ تھا کہ پہاڑوں تک پانی آ گیا، اور یہ اسکرین پر پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد مٹی اکٹھی ہو گئی اور کعبہ زمین میں تہ گیا، اور پھر کافی عرصے تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کہاں پر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر مکہ کی اس سنسان وادی میں یہاں پر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ بہت سنسان کچھ اس طرح کی تھی کہ علاقہ بہت ویران تھا، پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ کھانے پینے کا سامان ان کو دے کر اللہ کے حکم کے مطابق وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس ویرانے علاقے میں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ زمزم سے ریلیٹڈ میں نے ایک بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر دوبارہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جو کعبہ انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ کچھ اس طرح کا سادہ سا تھا، 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے اندر آتے تھے اور دوسرے دروازے سے باہر جاتے تھے، اور اس کا کوئی چھت نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان پر آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ اس طرح کا ہوا کرتا تھا۔ اس جگہ سے قافلے والے گزرا کرتے تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ یہاں پر کعبہ ہے اور پانی کا چشمہ بھی ہے تو اس جگہ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی اور لوگ یہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور ان کے بھی دادا جن کا نام قصی تھا اس وقت کی بنائی گئی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہاں پر آبادی اور زیادہ ہوتی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل آگے چلتی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ نیکسٹ یہ اسکرین پر پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے وقت کو دکھا رہی ہے۔ یہاں پر گھر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے، آبادی اور زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی تک زمزم کا کنواں گم ہوا تھا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے زمزم کے کنویں کی خواب میں لوکیشن بتائی تو انہوں نے اس جگہ پر کھدائی کی اور آپ کو دوبارہ زمزم کا کنواں مل گیا۔ اس کے بعد یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا، وہ 12,000 لوگوں کو لے کر 8-9 ہاتھیوں کے ساتھ مکہ میں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا۔ مکہ کے لوگوں کی تو آبادی بہت کم تھی، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ کے سب لوگ ادھر ادھر پہاڑوں پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ تو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجی، ان کے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، پرندوں نے وہ پتھر لشکر پر پھینکے اور یہ پتھر جس کو بھی لگتا تھا اس کا جسم گل سڑ جاتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت خانہ کعبہ کچھ اس طرح کے مناظر ہوا کرتے تھے کہ اس وقت خانہ کعبہ میں بت بھی پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اس وقت ہر سال مکہ میں مختلف قبائل کے لوگ آپس کے لڑائی جھگڑوں کو سائڈ
پیٹ پر रख कर हर साल हज के लिए आया करते थे और अपने अपने खुदाओं की इबादत किया करते थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्योंकि इस वक्त शिर्क का दौर था, कुछ बुत खाना काबा के इर्द गिर्द रखे जाते थे और कुछ बुत खाना काबा के अंदर रखे जाते थे। फिर इसके कुछ अरसा के बाद खाना काबा के पास मक्का में इस जगह पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। कुछ साल पहले यहाँ पर मस्जिद बनी होती थी, लेकिन सऊदी हुकूमत ने आजकल यहाँ पर लाइब्रेरी बना दी है। कुछ सालों के बाद खाना काबा की दीवारें कमजोर हो गई थी। कुरैश वालों ने फैसला किया कि वो हक और हलाल के पैसों से खाना काबा की दोबारा तामीर करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कुरैश वाले कुछ इस तरह खाना काबा की दोबारा तामीर कर रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर अब तक खाना काबा इस तरह का हुआ करता था, लेकिन अब जब कुरैश वाले काबा तामीर कर रहे थे तो उन्होंने खाना काबा की दीवारें ऊंची कर दी। देखें, पहले काबा इतना था, कुरैश के दौर में खाना काबा की दीवारें इतनी ऊंची की गईं। दूसरी बात, पहले काबा में हर कोई दाखिल हो सकता था, लेकिन इन्होंने खाना काबा का दरवाजा ऊंचा कर दिया। अब सिर्फ खास लोग ही खाना काबा में दाखिल हो सकते हैं। और पहले खाना काबा का छत नहीं था, इन्होंने काबा का छत बना दिया और एक परनाला बनाया जिससे पानी छत से नीचे गिरता था। और जब कुरैश वाले खाना काबा बना रहे थे, जब हजरे अस्वद तक पहुंचे तो सब कबीले वाले आपस में लड़ना शुरू हो गए कि हजरे अस्वद हम खाना काबा में लगाएंगे। दूसरे कबीले वाले कहने लगे कि हजरे अस्वद खाना काबा में हम लगाएंगे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये काला पत्थर हजरे अस्वद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया कि हजरे अस्वद को सब कबीले वाले एक चादर में रखकर सब चादर का कोना पकड़ लें। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को अपने दस्ते मुबारक से खाना काबा के कोने में लगाया, जो कि आज तक इसी तरह खाना काबा के कोने में लगा हुआ है। और जब वो खाना काबा तामीर कर रहे थे तो पैसे कम पड़ गए, तो उन्होंने खाना काबा की दीवारें चौड़ाई में छोटी कर दी और जो जगह बची वहाँ पर एक यू शेप की दीवार बना दी गई, जो कि आज तक इसी तरह खाना काबा में यू शेप की दीवार बनी हुई है। इसको हतीम कहा जाता है। इसमें भी अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत थी, वो ये कि आज के दौर में खाना काबा में हर कोई नहीं जा सकता, इसलिए एक आम मुसलमान हतीम में जाकर अल्लाह ताला की इबादत कर सकता है। हतीम में नमाज पढ़ने का ये मतलब है कि आप खाना काबा के अंदर ही नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुरैश से पहले हतीम वाली जगह खाना काबा के अंदर ही हुआ करती थी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद इस्लाम का आगाज हो चुका था और लोग तेजी से मुसलमान हो रहे थे। 8 हिजरी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमान मदीना से मक्का में खाना काबा को फतह करने के लिए आए। खाना काबा के करीब ये दरवाजा है, इसको बाबुल फतह का नाम दिया गया है, क्योंकि उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाजे से खाना काबा को फतह करने के लिए दाखिल हुए थे। काबा में दाखिल होने के बाद ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मुसलमान बने हुए हैं। खाना काबा में तकरीबन 360 बुत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ किया और मुसलमानों ने खाना काबा से सारे बुतों को तोड़ दिया और खाना काबा से शिर्क को पाक किया। उसके बाद हजरत बिलाल रज़ी ताला अन्हो ने खाना काबा के छत पर चढ़ के अजान दी। उस दिन से लेकर आज तक खाना काबा पर अल्लाह की मदद से मुसलमानों का कब्जा है और इस्लाम तेजी से फैल रहा है और मुसलमान दिन ब दिन ज्यादा होते जा रहे हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तकरीबन 65 हिजरी में, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में उन्होंने खाना काबा को दोबारा तामीर किया और ये जो हतीम वाला हिस्सा था इसको खत्म कर दिया और खाना काबा पूरा बना दिया, जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में था। फिर उसके 10-11 साल के बाद हज्जाज बिन यूसुफ के दौरे हुकूमत में आप देख सकते हैं उसने खाना काबा को दोबारा बनाया और जिस तरह का खाना काबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करता था उसने बिल्कुल वैसा ही बना दिया। ये हतीम दोबारा उसने बना दिया। उसके बाद तुर्की दौरे हुकूमत में आप देख सकते हैं खाना काबा को और ऊंचा किया गया और हतीम को और खूबसूरत बना दिया गया। उसके बाद ये आज के दौर का खाना काबा है, क्योंकि अब खाना काबा के ऊपर वाले भी फ्लोर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर भी तवाफ होता है, इसलिए इसको और ऊंचा कर दिया गया है। तो अभी आपने देखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खाना काबा कैसा हुआ करता था। तो चलें आप देखते हैं आज से 200-300 साल पहले खाना काबा कैसा था। ये जो आर्क आप बना हुआ देख रहे हैं ये 1606 में खाना काबा के एक दरवाजे पर लगा हुआ होता था। अस्वद के कवर देख रहे हैं, आज से 200-300 साल पहले इसमें हजरे अस्वद रखा जाता था और ये वो पुराने बर्तन हैं। पुराने जमाने में इनसे जमजम का पानी निकाला जाता था। ये बकरी की खाल है जिसमें जमजम का पानी रखा जाता था और कुछ बर्तनों से वुजू किया जाता था। ये खाना काबा का सबसे पुराना दरवाजा है जो 1650 में खाना काबा में लगा हुआ था। ये वो बर्तन हैं जिनमें जमजम रखा जाता था और जिनसे जमजम पिया जाता था। और ये कुछ सिक्के हैं जो बहुत पुराने जमाने के हैं, ये जमजम के कुएं से निकले थे।
थे। ये वो मीनार हैं जो पहले हरमैन शरीफैन में लगे हुए होते थे। आपने मेरी खाना काबा के अंदर वाली वीडियो में देखा होगा कि खाना काबा के अंदर 3 पिलर्स हैं। उन पिलर्स में से एक ये पिलर था, ये उसका कुछ हिस्सा बचा है। ये पिलर खाना काबा के अंदर 12वीं सदी के अंदर लगा हुआ होता था। ये 1881 की चीजें हैं जो खाना काबा की पुरानी यादों के तौर पर संभाल के रखी हुई हैं। और आप देख सकते हैं 1887 में मक्का शहर इस तरह का हुआ करता था और 1887 में लोग इस तरह से हज किया करते थे। 1892 में खाना काबा के दरवाजे पर ये वाला ताला लगा होता था और ये उसकी चाबी थी जो कि निशानी के तौर पर संभाल कर रखी हुई है। ये 1895 का मिजाब रहमत है। ये वो परनाला है जो 17वीं सदी में खाना काबा के छत से जो पानी गिरता है हतीम में खाना काबा के छत पर लगा हुआ होता था। और आप देख सकते हैं 17वीं सदी में खाना काबा के पास और छोटी छोटी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। तो चलिए आइए देखते हैं कि खाना काबा उस वक्त कैसे हुआ करता था। आज से तकरीबन 100 साल पहले ये आप देख सकते हैं ये खाना काबा है। इसके इर्द गिर्द लोहे की ग्रिल्स लगी होती थी। इन ग्रिल्स के अंदर लोग तवाफ किया करते थे। ग्रिल के बाहर वाली तरफ ये आपको एक आर्क सा बना हुआ नजर आ रहा है। उस वक्त इसको बाबे बनी शेबा कहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहाँ पर एक दरवाजा हुआ करता था, इससे खाना काबा में दाखिल होते थे। 1967 में इसको मताफ के एरिया से खत्म कर दिया गया था ताकि लोगों को तवाफ करने में आसानी हो। और इसके पास ही जो आपको बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है ये मुकामे इब्राहिम था। आज के दौर में वो पत्थर जिस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान है वो इस जंगले में रखा होता है। लेकिन आज से 100 साल पहले खिलाफत उस्मानिया में ये वाली बिल्डिंग बनी होती थी और इसके ऊपर सब्ज रंग का गुंबद बना होता था। इसके अंदर वो पत्थर रखा जाता था और इसके पास ही ये वाला मिंबर होता था जिस पर से खुतबा दिया जाता था। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं खाना काबा में 4 अलग नमाज पढ़ने की जगह थी और चारों फिक्के के लोग एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। खाना काबा में फजर की एक नमाज 4 दफा पढ़ी जाती थी, जोहर की 4 नमाजें होती थी, इसी तरह असर की और बाकी भी एक नमाज 4 दफा अदा की जाती थी क्योंकि इन्होंने डिफरेंट टाइम रखे होते थे और अपने अपने टाइम पर नमाज अदा करते थे। ये हतीम के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग आप देख सकते हैं ये मकाम हनफी था। यहाँ पर हनफी फिक्के के लोग नमाज पढ़ा करते थे और इसके 2 फ्लोर थे। नेक्स्ट जमजम के कुएं के ऊपर ये वाली बिल्डिंग बनी हुई होती थी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे लोग जमजम का पानी ले रहे हैं। जमजम की बिल्डिंग के ऊपर मकाम इमाम शाफी था। सीढ़ियों से चढ़ के लोग ऊपर जाते थे और इसमें तकरीबन 50 लोग आ सकते थे। ऊपर इसके सब्ज गुंबद बना हुआ होता था, यहाँ पर शाफी फिक्के के लोग नमाज अदा किया करते थे। नेक्स्ट इस बिल्डिंग को मकाम इमाम मालिक कहते हैं। यहाँ पे मालिकी फिक्के के लोग नमाज पढ़ा करते थे। और ये हजरे अस्वद के बिल्कुल ऑपोजिट बिल्डिंग बनी हुई है, इसको मकाम हम्बली कहते हैं। यहाँ पर हम्बली फिक्के के लोग नमाज पढ़ा करते थे। तो सऊदी हुकूमत ने 1925 में कुरान पाक की आयत के मुताबिक, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ, तो उन्होंने चारों इमामों को यहाँ से खत्म कर दिया। लेकिन ये बिल्डिंग्स उस तरह ही वहाँ पर रहीं। 30 साल के बाद 1955 में उन्होंने ये बिल्डिंग्स भी यहाँ से खत्म कर दी ताकि पूरे खाना काबा में नमाज पढ़ने का एक टाइम हो और तमाम हाजियों को तवाफ करने में आसानी हो। मुझे इसमें अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत नजर आती है क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़े सही वक्त में ये सारी यहाँ से खत्म करवा दिए, क्योंकि आगे आने वाला दौर मोबाइल का था और कंप्यूटर का था। पूरी दुनिया में लोग देखते, अगर कोई नया मुसलमान होता और ये यहाँ पर खाना काबा में आता और वो यहाँ पर देखता कि 4 नमाज पढ़ने की जगह हैं, तो मैं कहाँ पर नमाज पढ़ूं, वो बेचारा बहुत कंफ्यूज हो जाता, परेशान हो जाता। इसलिए अल्लाह ताला की इसमें बड़ी हिकमत है, एक नमाज पढ़ने की जगह है और सऊदी हुकूमत किसी फिक्के को कुछ भी नहीं कहते, जिस तरह कोई आए जैसे मर्जी यहाँ पर आकर नमाज पढ़े। और ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आज से 100 साल पहले के खाना काबा की खूबसूरत यादें और दिलकश मनाजिर हैं कि उस वक्त इस तरह से लोग खाना काबा में आकर तवाफ किया करते थे। तो चलें अब हम देखते हैं कि किस तरह पिछले 100 सालों में कौन कौन सी चेंजेस आई। ये 1900 में खाना काबा के इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स बने होते थे, आप देख सकते हैं, और उस वक्त सफा मरवा जाते हुए इस तरह के मनाजिर होते थे। फिर 1908 में खाना काबा ऐसा हुआ करता था और फिर ये 1920 के खाना काबा के मनाजिर हैं। ये पीछे सफा मरवा का पहाड़ बना हुआ है और 1920 में इस पर आर्क्स बने हुए होते थे और आप देख सकते हैं कि लोग उस वक्त सफा मरवा के पहाड़ पर चढ़ सकते थे। लेकिन आजकल इसके आगे ग्रिल लगाई हुई है, कोई इस पहाड़ पर नहीं जा सकता। ये 1927 के मनाजिर हैं
और अगर आपको थोड़ा सा करीब से दिखाऊं तो करीब से देखें, ये 1937 में खाना काबा के दरवाजे की तस्वीर है। और नेक्स्ट ये 1940 में सफ़ा मरवा के दरमियान का रास्ता कुछ इस तरह का हुआ करता था। और 1940 में बाबे सफ़ा जहाँ से हम सही शुरू करते हैं उस वक्त ये दरवाज़ा इस तरह का होता था, जो कि आज के दौर में इस तरह का कर दिया गया है। उसके बाद 1941 में सैलाब आ गया था। कितना पानी है ये आप देख सकते हैं कि नीचे पानी में गाड़ियां डूबी हुई हैं और ये हाजी ऊपर से देख रहे हैं। ये खाना काबा के पास लोग पानी में चल रहे हैं और ये इसके पास ही मकाम इब्राहिम है। उस वक्त जहाज तो नहीं होते थे, लोग जानवरों पर दूर दूर से हज करने के लिए आया करते थे और उनको सफर में बहुत ज्यादा दिन लग जाया करते थे। ये 1957 में अल सऊद के दौर में खाना काबा की मुरम्मत का काम किया जा रहा है। 1960 में पहली सऊदी एक्सपेंशन में सफा मरवा पहाड़ों को मस्जिद के अंदर ही शामिल कर लिया गया था और सही के ऊपर छत बना दी गई थी। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब सफा मरवा वाली साइड पर काम हो रहा था। ये भी तकरीबन 1960 में सफा वाली साइड पर काबा में काम हो रहा था। फिर इसके बाद आज तक सफा मरवा के पहाड़ मस्जिद के अंदर ही शामिल हैं और इनके आगे ग्रिल लगा दी गई है। अब इन पहाड़ों के ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। सफा पहाड़ से मरवा पहाड़ तक इस तरह सफेद टाइल्स लगाकर रास्ता बना दिया गया है और दरमियान में इलेक्ट्रॉनिक मोटर बाइक्स के लिए रास्ता बनाया गया है। जो लोग खुद नहीं चल सकते वो बाइक्स वालों को पैसे देकर बाइक्स पे 7 चक्कर लगा सकते हैं। ये 1965 के हज के कुछ मनाजिर हैं। लकड़ियों पर लोग खाना पका रहे हैं और ये बाजार के कुछ मनाजिर हैं, लोग सब्जियां खरीद रहे हैं। ये 1974 के हज के कुछ मनाजिर हैं। उस वक्त इस तरह की गाड़ियां होती थी और बसें होती थी, उनके ऊपर इस तरह से लोग अपने बैग्स रख कर बस के अंदर बैठ कर सफर किया करते थे। अब जहाज के जरिए इतने दिनों का सफर कुछ घंटों में हो जाता है, इसलिए ये देखें कितने ज्यादा लोग अब आना शुरू हो गए हैं। 1978 की ये कुछ यादें हैं। उस वक्त लोगों के पास मोबाइल फोन्स तो नहीं होते थे, तो आप देख सकते हैं कि लोग पीसीओ में जाकर अपने रिश्तेदारों को इस तरह कॉल करके बताया करते थे हमने उम्रा कर लिया है, उनसे इस तरह बात किया करते थे। 1979 में कुछ दहशतगर्दों ने खाना काबा पर हमला कर दिया था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। ये उनका लीडर था। बाद में ये सब दहशतगर्द मारे गए थे और कुछ पकड़ लिए गए थे। उसके बाद ये 2003 के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि जमजम के ऊपर बिल्डिंग होती थी, वो खत्म कर दी गई और नीचे सीढ़ियां बनी हुई हैं। लोग यहाँ से नीचे जाते थे और जमजम के पानी से गुसल करते थे। उसके बाद ये 2015 का काबा है। पीछे आप देख सकते हैं ये मक्का क्लॉक टावर है जिस पर बड़ी सी घड़ी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया से मुसलमान बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए खाना काबा के ऊपर और उसके भी ऊपर फ्लोर्स बनाए गए हैं। उसके बाद कोरोना आ गया था और 2 दिन तक मस्जिद हरम बंद रही। ये उस वक्त के मनाजिर हैं। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से कोरोना खत्म हो गया और दोबारा खाना काबा को हज और उम्रा करने के लिए खोल दिया गया। 1950 से 1973 तक किंग सऊद के दौर में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हरम में 4 नए मीनार लगाए गए, छत को रिपेयर किया गया, फर्श पर मार्बल लगाया गया और सफा और मरवा के पहाड़ों को मस्जिद के अंदर शामिल किया गया। उसके बाद 1982 से 1988 तक किंग फहद के दौर में मस्जिद को और बड़ा किया गया। ये वाली जगह मस्जिद में शामिल की गई और मस्जिद में दाखिल होने के लिए दरवाजा बनाया गया जिसको किंग फहद का नाम दिया गया। उसके बाद 2008 से अब तक किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के दौर में मस्जिद का साइज और बड़ा किया गया। ये वाली जगह मस्जिद में शामिल की गई, नया दरवाजा बनाया गया जिसका नाम किंग अब्दुल्ला रखा गया। इसका स्ट्रक्चर दिन ब दिन और बड़ा और प्यारा किया जा रहा है। ये फ्यूचर का प्रोजेक्ट चल रहा है। फ्यूचर में खाना काबा में और ज्यादा लोग आ सकेंगे और खाना काबा और खूबसूरत हो जाएगा। खाना काबा में हर तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं। 2018 में दुनिया के सबसे बड़े स्लाइड करने वाले गुंबद मस्जिद हरम में लगाए गए हैं ताकि इनको स्लाइड करके नेचुरल वेंटिलेशन की जा सके। सऊदी हुकूमत बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर रही है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने खाना काबा की पुरानी यादों को समेटने की कोशिश की है। मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और मेरी अम्मी की डेथ हो गई है, प्लीज आप उनके लिए 3 बार सूरह इखलास पढ़ के उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरी अम्मी की मगफिरत फरमाए, आमीन। और मुझे और आपको अल्लाह ताला हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज।